Who is Swapnil? Entrepreneur woman. यहाँ baby, वहाँ baby work. How baby work started off? Something which would meet my needs, मुझे कुछ नहीं मिला, and that is where I felt that gap. Trying to build something meaningful. आप दोनों काफी बढ़िया लग रहे हो मेरे को, भाई बहन. नहीं, हमारी long distance है. How the sustainability is. Everything is handcrafted. आपकी वेबसाइट में एक और इंटरेस्टिंग चीज है. By some hook or crook, वो बटन collection page पे डल गया. I am a curious Gen Z. We are very difficult. Gen Zs these days are very, We are trying to educate them that this is not just a purchase in terms of fashion or trend. What energy do Gen Z bring to your workspace? They are very passionate. of course Gen Zs do follow this already. Shark Tank is one of that platform. Another certification to our brand and product कि ये Shark Tank approved है. Riz. What? इसको कुछ नहीं आता है. I have to give you like 10 out of 10. This we've got what we wanted. I wanted the fame and you wanted the order. So I think we are at the right place. So Swapnil and Shrey, welcome to our podcast. Thank you so much for coming. Thank you. कैसे हैं आप दोनों? बस बहुत बढ़िया very All well. First of all, I would appreciate कि आप लोग इतनी दूर से travel करके for this podcast you have come up. I appreciate this a lot when someone is so serious to come on the podcast and talk about things, especially business owners, because already हम लोग time के लिए fight कर रहे होते हैं, and to take out time for something which is, let's say, not directly business oriented needs a lot. Thank you so much. I would want a quick introduction of both of you, one by one. So first of all, from you, who is Swapnil today? So Swapnil is a mother of two Okay. wonderful kids. One of the founders of BabyWorks. Oh, And yes, a struggling entrepreneur woman who's trying to, build her brand in such a way that more and more people know about it each day and yes, every day. correct. How old are they? 6 and 3. Okay. And about you, Shrey? So I'm an architect turned Hmm. into an entrepreneur and trying to build something meaningful and just enjoying the journey as we grow. आप दोनों सिबलिंग्स हैं, हाँ जी. तो आपके बचपन के किस्से कैसे हैं? लड़ाई वाले, प्यार वाले? लड़ाई का कोई स्कोप नहीं था. ये 2 बहनों के बाद एक भाई था, तो ही ऑलवेज हैड द अपर हैंड ऑफ मम्मी. उससे राजा बेटा बिहेवियर इसको दिया गया है आज तक. हाँ. आई थिंक 29 ईयर्स हो गए इसको वो बिहेवियर मिलता रहा है, तो हम दबे ही रहते हैं अब इसके अंडर. आपको श्रेय की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली. अब आप भाई बहन हो. श्रेय की सबसे अच्छी बात, सबसे खराब बात क्या लगती है? सबसे खराब बात, हाँ. बहुत बहुत कॉन्शियस रहता है चीज़ों को लेके, बहुत हाँ. ओवर थिंक कर जाता है. हाँ. मतलब आई एम एन ओवर थिंकर, बट ये हाँ. मुझसे भी बड़ा है. हाँ, पर ये तो थोड़ी बहुत अच्छी बात भी है ना? हाँ, कह सकते हैं. और आपको क्या दीदी की सबसे खराब बात, अच्छी बात? सबसे खराब तो ये है कि बहुत फास्ट है. हाँ. तो ये बहुत बिना सोचे समझे कभी कभार बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है और मैं Okay. थोड़ा थिंक थ्रू करना चाहता हूँ. तो वो ख़राब है. और अच्छी है कि ये जानती है कि मेरी स्किल्स क्या है, तो मेरे को करने देती है मेरा काम. हाँ. उसको पता है, ट्रस्ट करती है कि ये कर लेगा. बढ़िया. तो बढ़िया. शी लीव्स द डिसीजंस टू मी, जो मेरे डोमेन के होते हैं. क्या बात है. आप दोनों काफ़ी बढ़िया लग रहे हो मेरे को, भाई बहन. मैं और मेरी वाइफ भी अपना बिजनेस रन करते हैं, तो जब कोई ऐसे रिलेशनशिप इन्वॉल्व होती है ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ. नहीं, हमारी लॉन्ग डिस्टेंस है. शी लिव्स इन बॉम्बे and you live in जयपुर. Jaipur. अच्छा. तो you all are remote in your team? So basically the performance marketing, the media buying part happens from Jaipur, and the production, all the physical work related to the business like dispatch and everything happens in Bombay. So she takes care of all of that. Okay. I handle Okay. the finance and the media buying part. Okay. And how BabyWorks started off? So, BabyWorks actually started as a genuine need. I was trying to search something for my daughter. I had my daughter, और मैं उसके लिए I was trying to find some jewelry जहाँ मेरे emotions जो थे towards her and her personality or her likes could be reflected in a particular piece of jewelry. And I searched the market, खूब जगह देखा, but there was everything very generic. कुछ Okay. बहुत personalized, just something which would meet my needs. मुझे कुछ नहीं मिला. मार्केट में barely कोई options थे जहाँ पे बच्चों के लिए कुछ customize या personalize हो रहा हो. And that is where I felt that gap.
तो उस टाइम पे मैंने मेरी डॉटर के लिए किसी कारीगर से एक ज्वेलरी का पीस बनवाया, एक कड़ा बनवाया, ठीक है. एंड वो पहनने लगी उस कड़े को, इन बर्थडे पार्टीज एंड मीनिंग family get-togethers, weddings, and it was something very appealing, very striking. A lot of people would ask me, अरे अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? And I was also like, मैंने ही बनाया है, मतलब कहीं से लिया नहीं है, मैंने ही बनवाया है. So people really started appreciating it, and लोग पूछने लगे, अरे हमें भी बनवाना है. So that is how BabyWorks started. अरे वाह. तो मतलब पहले 10 जब आपने सेल करे अपने प्रोडक्ट्स जो आपने बनाए छोटे छोटे, कैसा एक्सपीरियंस था? किसको सेल किया? अपने फ्रेंड्स को या कैसे? So definitely पहले 4-5 प्रोडक्ट्स जो थे वो इमीडिएट फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ही थे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू उन लोगों ने देखा एंड दे गॉट वेरी एक्साइटेड, दे वर वेरी कीन. तो इनिशियल जो थे वो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे, इनिशियल 4-5 जो सेल्स थे, एंड देन इवेंचुअली वर्ड ऑफ माउथ से द नेटवर्क स्टार्टेड स्प्रेडिंग, एंड फिर उनके फ्रेंड्स ने, उनके रिलेटिव्स ने मुझसे ऑर्डर देना शुरू किया. एंड बाय देन वी हैड स्टार्टेड आवर इंस्टाग्राम पेज. तो वहाँ मैं थोड़ा पोस्ट करने लगी, सो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी, लाइक, एंड देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. ओके. सो स्वप्निल, जब भी हम कुछ ऐसे आउट ऑफ पैशन स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने भी अपनी बेबी के लिए सॉल्व करने का ट्राई किया एक कस्टमाइज ज्वेलरी, तो हमारा उस समय इंटेंट बिजनेस बिल्डिंग तो होता ही नहीं है. उस समय तो प्योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना ही होता है. पर एक पॉइंट आता है जब हमें ये लगता है कि यार ये तो बिजनेस भी बन सकता है, और उस पॉइंट के बाद थोड़ी हमारी डायरेक्शन भी बदल जाती है टुवर्ड्स दैट. पहले हम कॉस्ट का इतना ध्यान नहीं रख रहे होते हैं, या लेट्स से हम ऐसा मार्केटिंग वगैरह भी नहीं कर रहे होते. जो आया सेल हुआ चला गया. जैसे मेरी भी सिस्टर इन लॉ है, तो वो भी कस्टमाइज ज्वेलरी करती है सेल. इट्स हर पैशन. तो मतलब वो ही अपनी बेबी के साथ उन्होंने स्टार्ट किया सिमिलर जर्नी. बट वो पॉइंट जब आता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है कि अब ये बिजनेस बन सकता है. व्हाट वाज दैट पॉइंट फॉर यू एंड हाउ डिड थिंग्स चेंज फ्रॉम दैट पॉइंट? When there was a point when, as you said, कि initially the prices were not much, I was charging, मतलब जिस cost पे बन रहा था, and I was barely making any money, because initially of course it was for the known ones. Yeah. So there was a point where I realized कि लोग जो है, they are happy to pay a premium for my product. Meaning if the underlying value of the asset or the metal is, let's say, 5,000, people were happy to pay 7,000 also. So that was when it struck me that, there is something in the product, hence people are willing to buy that extra bit, या वो premium देने को ready है. So that is when I realized that, okay, this product has some potential. So that was the turning point when I decided कि I should, sort of take this to another level and not just keep it at a personal level, and start it as a business. Okay. Great. And before BabyWorks, what were you doing? So I'm a CA and a CS. Okay. So initially I was doing my job in EY in Bombay. And after my marriage, I was teaching as a lecturer in KC College, Bombay. Okay. And then I was expecting, so later on I had, I stopped teaching. I took sort of a sabbatical. I thought of a break, actually, not a sabbatical. I took a break, and then BabyWorks just happened to me. तो 2 बेबी हो गए आपके? हाँ, नहीं 3. 3. बहुत ही बढ़िया. एंड श्रेय, आपकी एंट्री कब होती है BabyWorks में? टुडे यू आर को-फाउंडर, राइट? सो आपकी एंट्री कब होती है? तो मैंने 2024 अप्रैल अराउंड आई जॉइंड BabyWorks. उसके पहले मैंने मेरा ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर में कंप्लीट करा था. आई पास्ड आउट इन 2019. एंड उसके बाद मैंने मेरे फादर की प्रैक्टिस को ज्वाइन करा. ही इज ऑल्सो इनटू आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स. इट्स अ फैमिली रन प्रोफेशन. एंड सो आई यूज्ड टू हैंडल द 3D विजुअलाइजेशन पार्ट ओवर देयर, वेयर आई यूज्ड टू हेल्प क्लाइंट्स एनविजन देयर ड्रीम डिजाइंस इनटू रियलिटी विद द हेल्प ऑफ 3D वॉकथ्रूज एंड रेंडर्स. ओके. सो बेसिकली टेक पार्ट में वहाँ पे संभालता था. एंड 2023 लेट की बात है, आई मीन दिसंबर जनवरी की बात है, व्हेन स्वप्निल एंड आई वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, एंड दैट्स व्हेन शी वाज टेलिंग मी अबाउट अ बिजनेस. मैं भी पूछ रहा था दैट व्हाट्स गोइंग ऑन विद BabyWorks, क्या चल रहा है. सो वो बता रही थी मुझे कि वी आर ग्रोइंग थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं. एंड हाउ शी यूज्ड टू रीच आउट टू कस्टमर्स. वो शी यूज्ड टू पोस्ट कंटेंट ऑर्गेनिकली. कभी कभार जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी स्वप्निल से मतलब BabyWorks से बाय करते थे ऑर्गेनिकली. तो फिर उस टाइम पे हमने थोड़ा सा और बात करी, तो मैंने BabyWorks के जो इंस्टाग्राम DMs होते हैं वो पढ़े, विच
in which Swapnil used to converse with the customers. तो जब वो पढ़े तो मुझे ये रियलाइज हुआ उस टाइम पे कि कस्टमर्स को just like in architecture what used to happen was clients आते थे and they used to discuss about their their homes or their spaces कि हमें ऐसा डिज़ाइन चाहिए ऐसा चाहिए. So earlier मेरे फादर जब वर्क करते थे तो वो बेसिकली उनके टाइम पे तो 2D ड्राइंग चलती थी, तो वो 2D ड्राइंग्स पे डिस्कशन होता था और उस टाइम पे लोग समझ भी जाया करते थे कि हाँ ये ऐसा मैप है, ये स्पेसेस का ये लेआउट है. बट देन व्हेन आई जॉइंड माय फादर तो उस टाइम पे थोड़ा सा 3D का टाइम आ गया था. देन वी ऑल्सो यूज टू डू MR विच इज मिक्सड रियलिटी. तो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का मिक्स होता है, तो आई ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग अराउंड दैट. तो मैंने रियलाइज़ करा आर्किटेक्चर में कि जब हम किसी भी कस्टमर को उनके ड्रीम डिज़ाइन को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं, सो इट स्ट्रेंथन्स देयर विजन एंड उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है टुवर्ड्स द पर्सन हु इज हेल्पिंग देम इनविजन इट. तो ये मेरी लर्निंग वहाँ पे थी. सो व्हेन सिमिलरली आई रेड बेबी वर्क्स के DM, तो आई रियलाइज कि यहाँ पे भी कस्टमर्स को वही चीज़ शायद नीड है कस्टमर्स को उस चीज़ की, बिकॉज अर्लियर शी वॉज डूइंग हर बेस्ट. वो ये हैंड स्केच कर रही है, ये कैनवा यूज़ कर रही है, ऑल द टूल्स दैट शी कुड यूज़ एट हर मैक्स कैपेसिटी ये कर रही थी. बट देन आई रियलाइज कि अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके अगर एक ब्रांड बिल्डिंग करे, वेबसाइट के साथ स्टार्ट करे, तो क्या पता कि कस्टमर्स को इससे और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए. सो दैट इज़ व्हेन हमने शॉपिफाई पे वेबसाइट बिल्ड करी इन 2024 अप्रैल. इन अ स्पैन ऑफ 15-20 days वी मेड द वेबसाइट. बहुत बेसिक बनाया था शुरू में, लिस्टेड द प्रोडक्ट्स एंड फोटोग्राफी वाज डन एट होम बाय स्वप्निल ओनली. सो पूरा हसल मोड में शी हैड डन वेरी गुड फोटोग्राफी एंड वी स्टार्टेड विद द वेबसाइट. एंड टू आवर सरप्राइज हमें फर्स्ट ही मंथ में 60+ ऑर्डर्स आ गए थे ऑन आवर वेबसाइट पे. Yes. और मार्केटिंग कैसे हो रही थी? मार्केटिंग वाज हैपनिंग थ्रू मेटा एंड इंस्टाग्राम एड्स. आई वाज हैंडलिंग इट. सो मेरे को मेरा इंटरेस्ट रहता है हमेशा टू लर्न अबाउट टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज गोइंग ऑन. आई यूज अ लॉट ऑफ ट्विटर ऑल्सो. तो मैंने थोड़े वीडियोज देखे हाउ टू बिगिन विद मेटा एड्स एंड एवरीथिंग, और बेसिक जो मेरे को नॉलेज थी मैंने उससे स्टार्ट करा. एंड उस टाइम पे 60+ ऑर्डर्स आए एंड टिल डेट like I am the one only who's handling the performance marketing in Babyworks. There is no outsourced agency or nobody else. I only look after the performance marketing. Super. क्योंकि आपने अपने aspect of work के बारे में बात करी, how are your roles divided today? What are the things you look out? What are the things you look out? So all the production and the designing part, what sort of new products we need to bring in, क्या changes होने चाहिए, how can we make them better, and everything related to production is being managed by me. And Shrey. And I handle the finance and the marketing bit of it, and of course the tech. So finance related कोई भी decisions हैं, numbers हैं, then marketing में media buying से related जो भी चीज़ें हैं, I look after that, and also the website part. So the tech that is behind the website, the 3D customizer that we also have. Correct. So all of that I take care of. Correct. So in the jewelry segment, especially today in Indian market when money is popping up, तो आज इंडिया उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे लोगों के पास स्पेंड करने के लिए ज़्यादा पैसा है, क्योंकि स्पेंड करने के लिए जगह भी मिल रही है और हमारा अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ रहा है. पर्सनल केयर, सेल्फ एक्सपीरियंस, ये जो चीज़ें हैं इन पे अब इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो गया है. ज्वेलरी एक टाइम पे बस ऐसे ही देखा जाता था, या तो जो मिडिल क्लास लोग हैं कि शादी में लेंगे, अरे सेव करके रख लो काम आएगा तब लेंगे, मतलब सेविंग्स के लिए, सेफ्टी के लिए, शादी ओकेशंस, हैवी ओकेशंस के लिए. और जो शौक था वो रिच सेक्शन में ही था कि मैंने ज्वेलरी गिफ्ट करी है, ये है वो. आपके क्या इंसाइट्स हैं, ये कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि आप ज्वेलरी सेगमेंट में, एंड देयर आर डिफरेंट कैरेट्स ऑफ ज्वेलरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन योर प्रोडक्ट्स. तो क्या इंसाइट्स हैं आज, क्योंकि आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स सेल कर दिए हैं, कितना लोग स्पेंड करना चाहते हैं एक्सपीरियंस पे और इन चीज़ों पे? डेफिनेटली पहले दिस मार्केट वाज क्वाइट रेस्ट्रिक्टेड और पीपल वर नॉट एजुकेटेड इनफ कि इस प्रोडक्ट का क्या अंडरलाइंग वैल्यू है, या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एसेट दैट दे आर बाइंग. So right now when people are buying from us, we are trying to educate them that this is not just a purchase in terms of fashion or trend, but this is a purchase that they are making as an investment for their child. Okay. And pehle jo tha, in the initial few years, this share was not there. I was only restricting the our business to gold jewelry. Okay. जिसमें जो मार्केट रीच था वो, as you said, it was restricted to a particular segment of people. But since past few years, we started with silver as well. And
on today's day, 90% of our revenue comes in from silver. Hmm. So, as Shreya shares the data with me, that a very large segment of our sales comes from cities like Vijayawada, which is a tier 3 city, and a lot of people are buying. So silver में जो हम लोग का जो price point है, उसको देखते हुए I think there are almost many, not just the upper level but the other levels also of the society who are willing to pay and buy for for their kids. Because now if you notice, बच्चों के लिए क्या नहीं बन रहा है, I mean हम लोगों की वैनिटी किट्स से महंगे, मेकअप किट्स से महंगे गर्ल्स के मेकअप वैनिटी किट्स आ रहे हैं, विच इज सेफ फॉर गर्ल्स, एंड what not is coming for kids. Those movable bags for kids, which are electronic bags, and so this what people are buying from us is just not a product. It's actually an investment. So because of that, and also because of how we are trying to bring the story or the content creation ahead with our audience, people are buying. So They're what are the definitely buying. occasions on which people buy your products? So I mean, starting from the birth till the child turns 16 or 18, अभी जैसे बच्चा होता है तो अपने नामकरण होता है, नेमिंग सेरेमनी रहती है, फिर बच्चे का जलवा होता है, मारवाड़ियों में मुंडन होता है, अन्नप्राशन, द फर्स्ट टाइम द चाइल्ड ईट्स, फर्स्ट बर्थडे. इंडिया में जैसे दिवाली रहती है तो दिवाली पे लड़कियों को स्पेशली गिविंग समथिंग, सम ज्वेलरी टू, नवरात्रि हो गई. सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ये जो श्राद्ध के महीने रहते हैं जो विच इज नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस थ्रू द ईयर, राखी देख लीजिए आप, राखी पे भी मतलब एट द कॉस्ट पीपल आर बाइंग सिल्वर राखी. व्हाट पीपल नाउ प्रेफर इज कि उसी रेट में अगर बच्चे को अपन सिल्वर का कोई कड़ा या ब्रेसलेट दे रहे हैं, विद द चाइल्ड वुड बी हैप्पी टू वेयर जिस पे उसका नाम लिखा है, दे प्रेफर दैट. सो ऑल दोज ओकेजन्स, सो आई मीन इट्स जस्ट we can just use Babyworks through the year. करेक्ट. आई थिंक वो जो गोल्ड और सिल्वर के टुवर्ड्स एजुकेशन है वो भी बहुत बढ़ गई है. इसीलिए परचेजिंग पावर भी और अर्ज टू परचेज भी लोगों का बढ़ता जा रहा है. सो वन ऑफ माय फ्रेंड वो क्या करता है कि जब भी हम लोग एक वर्क ट्रिप पे जाते हैं तो वर्क ट्रिप के बाद वो छोटा सा गोल्ड या सिल्वर का कुछ खरीद लेता है एज अ मेमोरी, एंड ही गिफ्ट्स दैट टू हिज वाइफ कि ये मैंने खरीदा है, मैं इस वर्क ट्रिप से आया था. तो आई थिंक लॉट ऑफ एजुकेशन इज गोइंग अराउंड ज्वेलरी बिकॉज ऑफ विच पीपल आर बाइंग नाउ. और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है. ऑन द साइड, सो आई हैव 2 questions, one from you and another from you. पहला आपसे कि when we are making products for kids, what are some of the things in the production side जो हमें ध्यान में रखना होता है, let's say with respect to अगर वो हम 18 plus की एज के लोगों के लिए बना रहे होते हैं to you, and then to you the marketing side. तो पहले आपसे पूछता हूँ and then I'll come to you. So I mean, जब हम बच्चे के लिए कुछ बनाते हैं, so the basic before I get into the details and the technicalities of it, मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रही हूँ, my brand is just not a jewelry brand. It is a brand which is being led by a mother. So the mom perspective always comes in, and I have only one simple, way or funda I would say, कि मैं जो भी बना रही हूँ, if that cannot go on my child's hand or if my child cannot wear that particular design or product, मैं उसको नहीं बेचूंगी. ठीक है. Even if it is a customized order, किसी का personalized order है, वो बोल रहे हैं हमें बनवाना चाहते हैं, if I feel it is not safe for the child, that does not go out from Babyworks. It's a simple funda. Now इसकी बात करें in the technicalities of it, starting from the edges, हमारे जितने भी edges होते हैं products के, they are rounded. There are no pointed edges. अगर हम crown भी बना रहे हैं, अगर हम star बना रहे हैं, कोई भी अगर हम डिज़ाइन बना रहे हैं, वी इंश्योर कि जो उसके एजेस है वो राउंडेड हो. उसका रीज़न, बच्चा हमारी ज्वेलरी बॉडी पार्ट से डायरेक्ट टच होते हुए पहनता है, एंड बच्चे को स्क्रैच आना, लगना, परेशानी होना, दैट इज़ नॉट आवर एम. आवर एम इज़ just to make the kid and the parents, more than the kids, the parents feel good about it. So that's the first thing. अब after this we take care of the choking hazards. तो जो hooks होते हैं, जो clasps होते हैं, वो secured है या नहीं है, we use the lobster clasp. तो ये सब चीज़ें जो है ये हम यूज़ करते हैं, making sure कि वो बच्चे के लिए safe है. गलती से भी बच्चा हमारे प्रोडक्ट को मुंह में डाल के खींचने की कोशिश भी करता है, unless it's really tough one, we make sure कि वो जो लूज अटैचमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली फिक्स्ड है. देयर इज नो स्कोप कि वो बच्चे के लिए एज अ चोकिंग हजार्ड
work करे. Next comes the durability and the strength of the thread. तो जो चेन होती है या जो नज़रिए की कड़ी वो होती है, उसको हम खींच के हम खुद हमारे हाथ से हर जो थिकनेस हम लेते हैं प्रोडक्ट की, वी चेक इट कि अगेन अगर बच्चा उसको खुद के हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मुंह से खींचने की कोशिश कर रहा है, सो इज द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द थ्रेड safe enough for the child to wear it or no. And of course the plating that we use hypoallergenic, the polish is hypoallergenic. It's safe for the skin. अगर आप किसी ट्रेडिशनल ज्वेलर से ले रहे हैं, they might not get in the aspect of कि क्या पॉलिश हो रही है, but all our products are hypoallergenic. And of course all our gold products are hallmarked. So every product has a unique HUID code which you can check on the government website, the government portal of BIS, जिसमें आपको purity और clarity जो है gold product की you can check. So these are all those points that we make sure before actually making any product or when it goes out of our shop. तो जैसे हमारे चेक पॉइंट्स हैं कि बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है. देयर इज अ कंप्लीट चेक लिस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मार्केटिंग में व्हेन यू आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, व्हाट आर द थिंग्स यू टेक केयर अबाउट? सो बेसिकली मार्केटिंग में हम लोग बेबी वर्क्स में सिंस डे वन फनल वाइज अप्रोच फॉलो करते हैं. सो हमारे सेगमेंट में हम लोग को कस्टमर्स को एजुकेट और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए शुरू से हमने बहुत मतलब इस पे इंक्लिनेशन रखा है, बिकॉज बेबी ज्वेलरी इंसेप्शन से एक बहुत वेल नोन नीश नहीं है. ठीक है. बिकॉज इट नीडेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस टू गेट टू द कस्टमर्स कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जो आपकी लाइफ में सीमलेसली ब्लेंड हो सकता है. बिल्कुल. सो हम टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल अप्रोच से मार्केटिंग करते हैं बेबी वर्क्स में. सो जो टॉप ऑफ द फनल होता है उसमें व्हाट वी डू इज वी पुट आउट फाउंडर लेड कंटेंट. Okay. So basically where Swapnil and I, we come on the camera and we talk about the products ke Dadi chose silver, Nani chose silver, now it is your turn. So we try to hit customers through those pain points. Okay. We'll say ke moms are gifting this on baby showers. Okay. Why is this getting viral? Or ऐसे we try to put out statics, we try to put out small video creatives. And we try to put out the emotion in the video, to induce that feeling customer के mind में कि अच्छा ऐसा भी कुछ है, curiosity spark करते हैं हम लोग. तो top of the funnel से हम लोग बस educate करते हैं कि ऐसा कुछ है. We don't push them to buy, of course, because it is just the first level of Correct. marketing. Correct. Then in the middle of the funnel, we do influencer collabs. Okay. We send out the product to the influencers, then they create the story around the brand, and also हम लोगों को बताते हैं कि इस वाले में we need to hit the नामकरण वाला aspect कि बच्चे का नेमिंग सेरेमनी हो रहा है तो they can opt for baby works, they can customize it on the website. So middle of the funnel में it is more about the influencer part जो हम लोगों के साथ collab करते हैं. Then bottom of the funnel में we try to hit the customers with urgency and with offers. Okay. कि that if you buy today you'll probably get a 10% off, or if you buy one you get this, or if you buy two you get X price. So it becomes like a bundling discount when you buy in a pair. So Fair. It is like a tiered strategy that we follow, and Super. that has been working Super. well enough for brand us. building, trust on the top of the funnel, Yes. then user generated, Yes. experience led. Testimonial sort of stuff in the middle of the funnel, because they want to like understand from customers' perspective that how are they feeling about the product. Because of course founders will come on the camera and talk in a very good manner about the product, but when customers or the influencers they talk about the product, then it gives the the reliability is generated in that manner. So that is how we follow the funnel in the marketing bit. Okay. So marketing is a tricky space. हम लोग अलग अलग जगह हाथ पैर मारते हैं, and there are 10 ways to market products today, and we have to optimize for some and then leave some. On your side, आपके experience के basis पे, what is the best form of marketing for your business, or let's say for any D2C business? So I can tell you out my experience, because Okay. I am not well versed about the other D2C categories. In baby jewelry or in baby segment, what truly works is giving the parents the confidence and the feeling of trust and purity and transparency. If we are not transparent since the day one, then customers they are very customers these days are very smart. They get a sense of the brand in very early stages.
because of AI coming into play, many agencies who I talk to, like because I do a lot of Twitter, Yeah. so many people or many agency owners tell me that you should use AI for your content, for marketing and everything. But I refuse to do so, and I have a bias in this thing, and that is, if the customers who are very smart today, they get to know that this brand is putting out content based on AI, तो उन्हें लगेगा कि ये नेचुरल नहीं है. मतलब अगर बच्चे की स्किन पे प्रोडक्ट पहना रखा है और उसकी स्किन पे उस चीज़ का टेक्सचर है, या फिर उसके हाथ पे कुछ भी उसका शैडो आ रहा है, या बच्चे की स्किन पे उसका जैसा फील आ रहा है, वो एक रियल इमेज में जैसे दिखेगा, वो AI कभी, या फिर आज की डेट पे AI उतना रियलिस्टिक नहीं जनरेट कर सकता. तो व्हेन कस्टमर्स को ये आइडिया लगता है कि नहीं ये तो AI कंटेंट है, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिस इज नॉट रियल, दिस इज artificial. I would not say fake because AI is always, it is moving in a very fast direction. बिल्कुल. हो सकता है अभी से 10 दिन बाद मैं गलत हूँ. बिल्कुल. But as for today, थोड़ा सा मैं AI को अभी इतना ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं करा in terms of content. बिल्कुल. Because हम लोग चाहते हैं कि जो कंटेंट हो रॉ हो, ऑथेंटिक हो, और जो है वही दिखे कस्टमर्स को. We don't want to put out a picture perfect thing for them. We want to see it as it is. करेक्ट. तो चाहे हम स्क्रिप्टिंग में और उन सब में AI यूज कर लें, बट एक्सपीरियंस जो फ्रंट यूजर को हो रहा है वो रही है. आई थिंक बहुत ही डेप्थ में है इसके रिजल्ट्स जो आप बोल रहे हैं, बिकॉज इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. आज लेट्स से इफ आई वांट टू प्रमोट माय स्टूडियो, लेट्स से एज वन ऑफ द सर्विसेज, एंड मैं AI बेस्ड पिक्चर लगा दूं स्टूडियो के, कस्टमर विल कम एंड से कहाँ है ये सेटअप. करेक्ट. अरे ये तो ऐसा देखा था. सो आई हैव टू पुट रियल, वो जैसा है वैसा ही दिखे, तभी यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा. वरना एक बार तो कर लेंगे बट बाद में फिर प्रॉब्लम होगी. स्वप्निल, आपसे एक सवाल है कि हमारे पर्सनल लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें अपने बिजनेस में हेल्प करते हैं, है ना. लेट्स से माय मदर एंड माय बुआ जी, लॉट ऑफ पीपल इन माय फैमिली, दे आर फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड. तो मेरा उधर से काफ़ी इन्फ्लुएंस था टीचिंग से. मैंने शुरू से यही देखा कि मेरे घर में ही मार्कशीट्स बन रही हैं, बच्चों के पेपर साइन हो रहे हैं. तो एज सुन एज आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग, आई स्टार्टेड टीचिंग. So that is an influence, and today in my business as well, when I try to help my team, I become a teacher, right? Sometimes it is good, sometimes it is bad. जैसे कि थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो गया है. in your journey, आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो बिजनेस में भी बहुत हेल्प करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार अगर ये एक्सपीरियंस नहीं होता तो बिजनेस का ना थोड़ा डायरेक्शन अलग होता? I would say I am over ambitious. Okay. शुरू से, I mean, चाहे मैं पढ़ाई भी करती थी, I was not okay with coming even second in the class. I would always want to be first. That was my aim. आती क्या थी वो एक अलग बात है altogether. But my aim was always to come first. I always want more. मतलब अगर 11 बज गए एंड कोर्स खत्म हो गया है, देन आई वुड नॉट स्लीप. मैं शायद एक बार और उस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करती थी रात को, कि 2 घंटे में एक बार और रिवीजन कर लेती हूँ. एंड दैट इज हाउ आई एम राइट नाउ, दैट इवन इन द कार व्हेन वी आर कमिंग, आई एम लाइक ओके, let's talk about it, let's discuss about it. ये हो गया तो निकलती, चलो let's discuss about the ads. I mean, I do not like कि time waste हो. I'm very fast. मुझको चाहिए productivity. मतलब I want productivity. अगर मेरा बस पड़े तो मैं 24 hours में 48 hours की productivity निकालना चाहती हूँ. That is how I am since the beginning, and hence he says she's too pushy sometimes, because he's the one who would genuinely think about it, make a conscious decision, give it a thought. But I believe more in, just getting the results rather than spending too much time thinking about it. So that is one aspect of my nature that comes in. Sometimes it's good, but thankfully Shrey is the one who balances it. So when he feels कि मैं सही direction में जा रही हूँ, he accepts my decisions. And sometimes when he feels that I'm just going way too fast, he asks me कि तू रुक जा, give it some time, let me take it up. So that's how, it's been a balanced journey because of him. अरे बहुत ही सही. I think it makes a lot of sense, and I can relate very heavily. मतलब मेरा भी यही हाल है कि अगर टाइम खराब हो रहा है तो मुझे लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है. मतलब I can sleep but I cannot waste time. मैं सो जाऊंगा. And with me ऐसा, if like I'm here, my kids are not here in Delhi, they're in Bombay and I'm not with them. तो मतलब मुझको ऐसा लगता है कि गलती से भी अब बच्चे नहीं है तो मैं तो मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी लेवल इतना बढ़ा दूं कि तो जो कर सकते हो ना वो पूरा कर डालो, और आगे का भी कर. मतलब मैं अभी से राखी कलेक्शन के ऊपर मेरा थॉट चालू हो गया था फ्लाइट के अंदर, तो कि चलो अब राखी कलेक्शन बिल्ड करते हैं, लॉन्च करते हैं, बिकॉज देयर वाज नो नेटवर्क, तो नोट्स बनाने थे तो आई कांट इवन स्क्रॉल.
तो इतना प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाने का शौक है मेरे को कि कुछ जितना निकाल सकूँ उतना निकालो. So that is one thing. Not sure if it is. तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? I think I am not the one who has work-life balance. I am an extremist. I live in extremes. But I only believe कि I should be there at the right place when needed. बिल्कुल. अगर there is a day or some time when my kids need me as a mother, I am 100% there. बिल्कुल. And if there is a day like this today when I'm required here, I am absolutely here. So for me, there is nothing like work-life balance. It's just that I want to be at the right place in work and life when needed. That is how I feel. I think this is best definition of work-life balance. On your part, आपके कौन से पर्सन, एक तो मैंने आपका देखा कि आपका जो 3D वाला बैकग्राउंड है वो पूरा आपने अपने वेबसाइट और इसमें भी यूज़ किया है. You give that 3D feel of jewelry and all. Yes. But what other things of your personal experiences help you in your business? सो मेरे फादर जो है, मेरा उनसे बहुत सारी चीज़ों पे मैंने इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है उनसे, और उनने करवाई नहीं, मैंने खुद ही नेचुरली वो अक्वायर करी है उनसे आई थिंक. तो वन ऑफ द थिंग्स बीइंग के जब भी बिजनेस का कोई ऐसा पार्ट होता है जो एकदम नया होता है, तो आई ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम द स्क्रैच. फॉर एग्जांपल जैसे मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, मीडिया बाइंग था. तो मीडिया बाइंग जब मैंने शुरू में स्टार्ट करा, मेरा प्लान कभी ये नहीं था कि मैं ही इसे आगे जाके करूँगा. मैंने इसलिए सीखा क्योंकि फ्यूचर में जब मैं इस चीज़ को कभी सबलेट करूँ तो नो वन और नो एजेंसी और नो पर्सन कैन फूल मी. अगर मेरे को उसके बेसिक्स नहीं पता होंगे कभी भी, तो मतलब वो मुझे बस they will keep me in the They will dark. चूसो me. हाँ They'll मतलब take you for a ride. I'll be left hanging के पता नहीं, बिकॉज अभी तो मुझे इतना थोड़ा सा आइडिया हो गया, तो मुझे पता है कि कभी मेटा एड्स परफॉर्म नहीं करते तो एजेंसीज बोलते थे कि आज एल्गो खराब है, कल वो खराब है. बट जैसे अभी मुझे बेसिक्स पता है क्रक्स, तो अगर कभी मैं किसी को सबलेट भी करता हूँ तो मुझे कोर पता है उसका, तो ठीक है, आई विल बी इन अ स्टेट कि मैं उनसे कॉन्वर्स कर पाऊंगा. वेराज अगर कभी कोई चीज़ के बारे में आपको नहीं पता तो आपको बस ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ता है किसी और के ऊपर. तो आई थिंक इससे लर्निंग भी होती है, और सेकेंडली इससे बिजनेस है तो ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारे माइंड में होती है. तो आज अगर हमारे मार्जिन स्ट्रॉन्ग है तो उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी मीडिया बाइंग इन हाउस है. अगर हम उसका आउटसोर्स कर दे तो अभी हम लोग इतने नेसेंट स्टेज पे हमारे बिजनेस के, आई वुड नॉट से कि हम लोग बहुत हाइट्स पे पहुंच गए, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ग्रो. तो हम लोग का वो जो यूनिट इकोनॉमिक्स है या फिर हमारी जो अच्छी बैलेंस शीट जो दिखती है अगर, तो इसीलिए क्योंकि हमारी बहुत सारी कॉस्ट कंट्रोल्ड, बिकॉज इन हाउस हमने बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल रख रखा है. बिल्कुल. तो एज वी स्केल एटलीस्ट वी हैव समथिंग इन आवर कंट्रोल कि मार्केटिंग हमारे पास है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हमारे पास है. तो उन चीज़ों पे अगर हमारा कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम आउटसोर्स करते हैं, और उस केस में शायद हम लोग के मार्जिन थोड़े से वीकर होते. तो बिल्कुल सही बात है. आई थिंक काफ़ी बार हम लोग आउटसोर्सिंग और इस चक्कर में कि यार इसके लिए तो एक्सपर्ट ही चाहिए करते करते हम एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और हमें तो एजुकेशन है नहीं, तो वो कट करना भी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है. आई थिंक द लीन स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, कि जितना हम कॉस्ट में सेव कर सकें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लेट्स से ग्रोथ, बट येस एट द कॉस्ट ऑफ कि मैं अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर पाऊँ. बिल्कुल सही बात है. सो गोल्ड is a jewelry, I would say, is a segment जहाँ पे बंदा टच करके, फील करके, एक्सपीरियंस करके, of course 3D part is there, then decision लेता है. तो are you looking to do some offline stores or experience centers, or you do that today, or you want to stick to online, and what all markets, what all platforms are you in? So we are already in the process of having our first store launch. That's Super. going to be in Bombay. Okay. So apart from this, जो experiential stores रहते हैं जहाँ पे proper kids का collection रहता है, like First Cry stores हो गए, All Things Baby हो गए. We are trying to connect with those stores जहाँ हमारा पूरा collection नहीं, तो at least we can have a part of a collection being displayed there. We can have a particular segment which can be displayed जहाँ पे जो customer है वो touch and feel कर पाए हमारे product का. Because definitely we get that कि touch and feel is important when it comes to jewelry and especially gold. So hence that is how we are starting with it, and of course already on our already in the process of having our first store. And as of now we are in the process of onboarding quick commerce. उसके लिए हम एक अलग ही कलेक्शन पूरा क्यूरेट कर रहे हैं. Okay. That is happening side by side, but as of now we are not on quick commerce. Okay. Got it. आपकी वेबसाइट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, सेंड, आई थिंक चैट ऑन व्हाट्सएप या सेंड ऑन व्हाट्सएप इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो एक तो ऐड टू कार्ट का बटन है और एक नीचे व्हाट्सएप वाला है.
व्हाट इज द इनसाइट बिहाइंड इट? क्या वो डे वन से था या इट वाज अ लर्निंग थ्रू आउट? तो मतलब थोड़ा फनी बात है ये, बट हम आज बेबी वर्क्स जहाँ पे भी है, आई थिंक वो बटन का बहुत बड़ा रोल रहा है बेबी I know वर्क्स it. को वहाँ तक लाने में। हाँ. तो हुआ ये था कि जब हमने वेबसाइट स्टार्ट करी उसके बाद हम लोग कुछ ट्वीक कर रहे थे, बिकॉज बहुत बार कस्टमर्स का कॉल आता था हाँ. उस टाइम पे कि हमें कस्टमाइज करना है, कैसे करें। कॉल आते थे, व्हाट्सएप मैसेज नहीं आते थे इतने। तो जब उनके कॉल्स आने लगे तो मुझे लगा कि हर प्रोडक्ट के नीचे उस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर एक बटन होना चाहिए व्हाट्सएप का कि चैट कर सके। तो मुझे वो प्रोडक्ट पेज लेवल पर डालना था उस बटन को, बट बाय सम हुक और क्रुक वो बटन कलेक्शन पेज पे डल गया। मतलब कलेक्शन पेज का मतलब हुआ कि अगर एक कलेक्शन पेज पे 100 प्रोडक्ट्स लिस्टेड है तो वो 100 के नीचे चैट ऑन व्हाट्सएप का बटन रह गया। और जब वो डला तो आई हैड टू रश टू सम पार्टी, मुझे बाहर जाना था, तो मेरे को टाइम नहीं मिला शॉपिफाई से उसे हटाने का। एंड आई जस्ट मेरे लगा ठीक है आके कर लूँगा घर पे। और जब मैं आया वापस तो जो व्हाट्सएप बिजनेस होता है उस पर 10-11 क्वेरीज थी, जो कि यूजुअली दिन की 2-3 होती थी सेम मार्केटिंग स्पेंड पे बेसिकली। तो मुझे लगा कि इतने लोग का मैसेज है, मुझे लगा क्या ऐसे ही कोई एल्गो की वजह से कोई खराब ऑडियंस आ रही होगी, बिकॉज जब बहुत सारे मैसेज फॉलोअर्स आते हैं तो यूजुअली Tier 2 Tier 3 सिटीज़ तक वो एड्स पहुंच जाते हैं। तो कभी थोड़े ऐसे इंटेंट की क्वेरीज आती है जहाँ पे कन्वर्जन नहीं होते। तो मुझे लगा क्या पता ऐसा कुछ हो, बट टू माई सरप्राइज 10-11 में से 7-8 कन्वर्ट हो गई वो व्हाट्सएप की कॉन्वर्सेशन से। तो उस टाइम मुझे स्ट्राइक करा कि इतने मतलब बेसिकली वी जस्ट हैड टू टॉक टू द कस्टमर्स, राइट। उन्हें पूछा आपको क्या नाम चाहिए कस्टमाइजेशन में, व्हाट चार्म्स डू यू वांट विद द ब्रेसलेट, कौन सा स्टाइल चाहिए। तो 4-5 चीज़ें पूछी और UPI से पेमेंट उन्होंने करा और इट वाज वेरी सीमलेस। मतलब ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स में एक ऑर्डर कन्वर्ट हो गया। तो हमें उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि ये तो शायद इसमें कुछ है पोटेंशियल। बिल्कुल। तो फिर डिसाइड करा वो बटन नहीं हटाते, वो बटन चलने देते हैं। और उसके बाद जो पहले ऑर्डर्स हमारे पास डायरेक्ट वेबसाइट से आते थे वो 50% वेबसाइट पे हो गए, 50% व्हाट्सएप से आने लग गए। और इससे ये भी रियलाइज हुआ हमारे को कि एक ह्यूमन इंटरवेंशन भी ज़रूरी है इन ज्वेलरी सेगमेंट, बिकॉज कस्टमर जानना चाहता है कि सामने एक रियल ह्यूमन बात कर रहा है उससे। भाई आज यू आर नॉट सिटिंग एट अ शॉप, यू आर सिटिंग इन अ ऑनलाइन मैनर में आप सेल कर रहे हैं। तो उससे ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा, या तो आपकी स्टोरी टेलिंग या आपका ब्रांड उस टाइम तक इतना स्ट्रांग हो। जो हमारा शुरू में इट वॉज इन अ डेवलपिंग फेज। तो उस व्हाट्सएप के बटन ने हमें बहुत अच्छा किक दिया। मैं बहुत सारे लोगों को, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी करते हैं D2C, मैंने बोला कि ये अगर नहीं है तो, वैसे बहुत बेसिक इंसाइट है, कोई बहुत हाई लेवल इंसाइट नहीं है, बट ऑफकोर्स जब कस्टमर व्हाट्सएप पे आ गया और उससे लग रहा है कि सामने एक रियल यूज़र उससे बात, रियल ब्रांड उससे बात कर रही है, कोई उस ब्रांड से कोई एक असाइंड पर्सन है जिसको पूरी नॉलेज है इन डेप्थ, तो उसका एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। तो उस बटन ने हमें बहुत किक दिया एंड टिल डेट वी गेट ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ आवर ऑर्डर्स थ्रू दैट बटन, जिससे कस्टमर्स व्हाट्सएप पे आके कन्वर्ट होते हैं। अरे वाह। एक्चुअली हुआ क्या है, आई वॉज चेकिंग द वेबसाइट और मैंने ये बटन देखा। आई इमीडिएटली रिलेटेड इट विद वन ऑफ आर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो वी ऑल्सो सेल सर्विसेज, ठीक है। तो every service, let's say if someone wants to do a podcast or a personal branding video or edits, हर सर्विस का एवरेजली टिकट प्राइस जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपये से ऊपर ही है, राइट। सो अगेन पैसे ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन इंडियन मार्केट, कि एक स्वर्विस का अगर मैं 10,000 से ऊपर चार्ज करता हूँ तो आर डेवलपमेंट पार्टनर्स जो हमें ये सर्विसेज के लिए, शॉपिफाई की तरह हमारी वेबसाइट भी है, तो आपको पॉडकास्ट करना है तो ये चार्ज, आपको एडिटिंग करवानी है ये चार्ज, स्ट्रैटेजी करानी है ये चार्ज। तो वो मेरे से कह रहे थे कि आप अपना व्हाट्सएप बटन हटा लो ना नीचे से, जो आपके यहाँ पे आता है चैट ऑन व्हाट्सएप। तो आई शेयर द सेम इनसाइट विद देम कि यार हमारी जो ऑडियंस है इंडिया में, बिकॉज दे आर फ्रॉम दुबई एंड सिंगापुर, तो वहाँ पे क्या है कि ऑडियंस are very aware about this kind of service कि हाँ ये होता है, they are ready to pay, they can pay without talking to anyone। कि मैं 8,000 10,000 रुपए या let's say $100 या $150 spend कर दूंगा, मेरे को बात नहीं करनी। they want to save time, they trust and then they make decisions। but here people want to chat, उनको एक डर है मन में कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं है, ये तो नहीं है, क्या आप ये भी ऐड कर सकते हो, क्या ये भी हो सकता है। सो दैट व्हाट्सएप बटन इज गोल्ड माइन फॉर अस, बिकॉज आज ही अगर मैंने व्हाट्सएप हटा दिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी सेल कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है।
वहाँ से वी कन्वर्ट अ लॉट ऑफ पीपल, और होता क्या है कि इनफैक्ट एडिशनल सेल हो जाती है बिकॉज कस्टमर को अवेयरनेस नहीं थी कि वो क्या क्या कर सकता है। हमने व्हाट्सएप के Right. थ्रू, एक पर्सनल ह्यूमन टच के थ्रू उनको अवेयरनेस भी दे दी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो आई थिंक जैसे ही मैंने वो बटन देखा ना, मैंने कहा यार ये सवाल मेरे को पूछना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट फॉर एनी बिजनेस। सो टू बोथ ऑफ यू, हर बिजनेस को एक ऐसा मूवमेंट चाहिए होता है जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिले यार दिखाने का कि हम क्या कर रहे हैं। एंड टुडे इफ वी स्पीक इन इंडिया, शार्क टैंक इज़ वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है कि मेरे को अपना बिजनेस दिखाना है। इफ इट इज़ अ प्रोडक्ट तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है कि यार मेरे को वो मौका मिले। What was your journey, emotions when you were, let's say, filling Shark Tank form, and what were your inspiration to fill? What were your expectations? How was that complete scene? I want to know from you guys. तो बेसिकली शार्क टैंक बहुत हमारे लिए बहुत कैंडिड था हमारे लिए. इट वाज ऑफ कोर्स नॉट प्री प्लान्ड. मैं शार्क टैंक सीज़न 1 से बहुत प्रॉपर्ली देखता हुआ आया हूँ. बिंज वॉच करता था मैं. लंच डिनर करते टाइम एक एपिसोड देखना ही देखना फिक्स था. एंड आई यूज्ड टू लाइक इट. ऐसा मेरा कोई बिजनेस प्लान नहीं था उस टाइम में, तो बिजनेस था ही नहीं मेरी लाइफ में, बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्चर विद माई फादर. तो हर सीज़न देखता था मैं. एंड जब इस वाले सीज़न के फॉर्म्स बाहर आए, एट दैट टाइम सोनी लिव का मेरे इंस्टा पे कहीं पे ऐड आया दैट फॉर्म्स आर ओपन, तो यू कैन फिल द फर्स्ट स्टेज वाला फॉर्म. एंड एट दैट टाइम मैंने बेबी वर्क्स के लिए फॉर्म सबमिट करा था, इन विच वी जस्ट हैड टू सबमिट वेरी वेरी बेसिक डिटेल्स अबाउट द बिजनेस. दैट व्हाट डज द बिजनेस डू, वेयर आर यू बेस्ड, हाउ मेनी फाउंडर्स आर देयर, व्हाट इज़ द ब्रांड अबाउट, इन जस्ट अ सिंगल लाइन. लाइक 5 मिनट फॉर्म होगा खाली वो, जो मैंने सबमिट करा. एंड उस टाइम पे जब मैंने सबमिट करा, मैंने स्वप्निल को नहीं बताया कि बेबी वर्क्स का कोई शार्क टैंक में हम फॉर्म भर रहे हैं. अच्छा. बस ऐसे भर दिया कि लगा कि अपना थोड़ी होगा, आगे तो कर लेते ट्राई करने में. टाइम पास के लिए 5 मिनट का काम है तो कर दो ऐसा टाइम. ना नहीं, कि- वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो होती है उस टाइम पे पर तो- हम जीरो करके रखते हैं. हाँ, वो अंडर प्ले करना बेटर हाँ, होता है हाँ. ओवर एक्सपेक्ट करने से. हाँ. तो फिर बस भर दिया फॉर्म फर्स्ट, और भर के नॉर्मली 1 महीना निकल गया, कुछ ऐसा नहीं. फिर 1 महीने बाद शार्क टैंक से मेल आया दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज 2 वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ वीडियो ऑफ यू एंड योर को फाउंडर. मतलब 60 सेकेंड 90 सेकेंड वीडियो सबमिट करना है आपको. सो बस वो मेल करना था मार्को उनको, इतना ही था उस फॉर्म में. तो उस टाइम पे मैंने स्वप्निल को बताया कॉल करके कि शार्क टैंक में अपना सिलेक्शन हुआ है, कोई फेज 2 ही है, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी अपन, शायद इसके बाद ही सेलेक्ट होने वाले आगे, बट ट्राई कर लेते हैं, इधर तक कुछ हुआ ही है तो छोटा मोटा. तो देन आई वेंट टू बॉम्बे एंड हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस करा एक दिन जो रिकॉर्ड करना है. देन हमने हमारा स्क्रिप्ट करके एंड हमने वो वीडियो सबमिट करा उनको, इन विच शी स्पोक अबाउट द आइडिएशन पार्ट, और मैंने थोड़ा सा बिजनेस का थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट एक्सप्लेन करा था. देन वी सबमिटेड एंड देन अगेन हमें लगा कि बस यही होगा, इसके आगे तो नहीं होने वाला सिलेक्शन ऑफ कोर्स. फिर 1 महीना वापस निकल गया. फिर उनका मेल आया दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज 3 एंड दिस इज़ व्हेन दे कॉल यू टू बॉम्बे फॉर पर्सनल ऑडिशन राउंड, वेयर सोनी लिव की जो टीम होती है, जो एनालिस्ट होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं. इट इज़ लाइक अ मॉक शार्क टैंक पिच बट विथ द सोनी लिव टीम, नॉट द रियल शार्क्स. तो आपको आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले लेके जाना होता है एंड यू हैव टू प्रिपेयर जस्ट लाइक अ रियल पिच. वही आपकी प्रिपरेशन होती है. तो हमने वापस वो तैयारी करी. एंड देन दे ऑल्सो आस्क्ड अस टू कंप्लीट अ फॉर्म विच वॉज 7 or 8 pages लॉन्ग. उसमें दे आस्क यू अबाउट एवरीथिंग लाइक नंबर्स, बिजनेस साइड, द टीम, हाउ यू प्लान टू ग्रो, हाउ यू प्लान टू यूज़ द फंड्स, आपको कितना इक्विटी डाइल्यूट करना है, कितना रेज करना है, व्हाट इज़ योर कैक, LTV, ROAS, एवरीथिंग. सो वो सब उनने हमारे से मांगा, हमने सबमिट करा एंड देन वी वेंट टू बॉम्बे फॉर द पर्सनल ऑडिशन वेयर वी गेव ऑलमोस्ट अ 60-minute इंटरव्यू टू देम. एंड उस इंटरव्यू में दे आस्क्ड अस लाइक ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड था. एंड वो अच्छा गया हमारा, मतलब इट वाज अ वेरी हैप्पी कॉन्वर्सेशन. उनने हमारे से जो पूछा हमें ऑलमोस्ट सब एक्सप्लेन करना आता था, वो करा. एंड देन इन द एंड दे टोल्ड अस कि चलो अब वी लेट यू नो, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यू विल हियर फ्रॉम अस, अगर होगा तो, अदरवाइज आपका नहीं हुआ आप ये मान लेना. और आपको 15 दिन पहले बता देंगे अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाएंगे बॉम्बे, विच विल बी द फाइनल शार्क पिचिंग राउंड. तो हम जयपुर आ गए, मतलब मैं जयपुर आ गया एंड देन रेगुलर बिजनेस. तो बेसिकली स्टेज 3 के बाद हमारा स्टेज 4 आया, जब हमारे पास शार्क टैंक की टीम से कॉल आया. और उनका प्रोटोकॉल होता है कि वो हर कॉल पे डिस्क्लेमर देते हैं बिफोर द कॉल बिगिंस कि
ये कंफर्मेशन कॉल नहीं है, दिस इज जस्ट अ कंफर्मेशन, कि उम्मीद मत रखना. हाँ दिस इज जस्ट लाइक अ एक कंफर्मेशन कॉल नहीं है बट प्री कंफर्मेशन है कि अगर बाय हाँ. चांस आप सेलेक्ट होते हो तो आप अवेलेबल हो क्या इस डेट पे. तो हर स्टेज पे अंटिल योर एपिसोड एयर्स वो हर कॉल पे ये लाइन बोलते ही बोलते हैं. तो उन्होंने पूछा हमारे से कि आप इस डेट पे अवेलेबल हो क्या, तो मैंने बोला हाँ हम हैं. तो उन्होंने बोला ठीक है वी लेट यू नो अगर आप होते हो तो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट ये ही सिलेक्शन कॉल होगा फाइनल शार्क टैंक वाले राउंड के लिए. तो मैंने इसको कॉल करा एंड हम लोग थोड़ा खुश हो गए कि यार चलो यहाँ तक पहुँच गए, अब तो हो ही जाएगा मोस्टली. फिर क्या हुआ कि वो टाइम निकल गया, मतलब बेसिकली जिस डेट पर उन्होंने हमारी कंफर्मेशन चेक करी थी कि हम अवेलेबल है क्या. एंड वी वर थिंकिंग कि यार अब आएगा कॉल, अब आएगा, और वो डेट निकल गई आके. और हमें ऑब्वियसली पता चलता था बाकी शार्क्स की स्टोरी देख के कि आज शूट हो रहा है स्टूडियो में. तो वी वर हार्ट ब्रोकन के यार नहीं हुआ, ठीक है आज तक की जर्नी थी एंड कोई बात नहीं हो गया. देन वी वर लाइक कि ठीक है अब कंटिन्यू करते जो भी है, थोड़ा सा क्यों सोचना इतना ज़्यादा. So then what happened was on the day when my wife and my mom's birthday comes, उस दिन हमारे पास शार्क टैंक की टीम से मेल आया कि you have been selected for the final round of Shark Tank and you are required to come to Bombay to pitch to real sharks and film city में आना है आपको. तो वो दिन पे एक्चुअल मेल आया कि आपका राउंड का सिलेक्शन हो गया है. तो देन वी वर रिलीव्ड कि चलो यहाँ तक पहुँच गए, अब एटलीस्ट पिच करेंगे, अब फंडिंग मिले वो बात की बात है, एयर हो वो बात की बात है, बट यहाँ तक पहुँच गए. तो देन दिस वेंट थ्रू लाइक दैट, यहाँ तक हम पहुँचे. देन ऑफ कोर्स वी प्रिपेयर्ड अ लॉट. शार्क्स के लिए हमने उनके बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स कस्टमाइज करे, वो पूरा प्रोसेस किया. देन वी हैड टू गो थ्रू आवर नंबर्स, बिजनेस साइड पे पूरा वर्क करा. स्टोरी को बहुत अच्छे से हमको नरेट करने के लिए वी हैड टू प्रैक्टिस बिकॉज दैट इज़ व्हेन द होल कंट्री सीज यू और आपका नैरेटिव डिफाइन होता है वहाँ पे. बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज यू आर ट्रूली, तो आपसे लोग कनेक्ट कर पाते हैं. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस दिन के लिए प्रिपेयर करना. सो वी जस्ट हसल मोड में चले गए लाइक कि अब करना है इसके लिए पूरा. तो थ्रू एंड थ्रू प्रिपेयर करा, इसने भी मैंने भी, हम सब ने मिलके. बिल्कुल. एंड देन यू सिक्योर्ड फंडिंग एज वेल यस फ्रॉम अमन गुप्ता. यस. ओके. तो फंडिंग एक पार्ट है, एक आउटपुट है लेट्स से पिच करने का. सेकेंड आउटपुट इज लेट्स से हमारा बहुत अच्छे लेवल पे एक प्रमोशन भी हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन आवर पिच प्रमोशन भी हो रहा है. थर्ड आई थिंक एक्सेस टू पीपल बढ़ जाता है. Post Shark Tank, apart from sales and marketing, they are natural to happen. Yes. Right? They are. I would not hesitate to say कि that is another form of marketing in today's day and age. कि हाँ हम Shark Tank एक brand जैसे founders के लिए होता है TED Talk. कि TED Talk वाला founder है यार, ये तो इसने तो कुछ उखाड़ा है. क्रेडिबिलिटी का बैच है. क्रेडिबिलिटी का बैच है. राइट. सिमिलरली Shark Tank फॉर फाउंडर्स टुडे कि शार्क टैंक में गए हैं यार, फंडिंग भी सिक्योर करी है. बट मैं थोड़ा इनसाइड जानना चाहता हूँ कि क्या और बेनिफिट है, या लेट्स से व्हेन यू गेट फंडेड बाय अ शार्क किस तरीके का एक्सेस यू गेट टू हैव, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव आफ्टर शार्क टैंक व्हिच यू डोंट हैव बिफोर शार्क टैंक. So, of course, the credibility factor that you Yes. spoke about, बहुत ज़्यादा instant credibility मिलती है, and especially for a product like ours, जैसे कि लोग बोलते हैं कि jewelry है, silver है, gold है, how are people getting that assurance कि product सही है? So for us, it's like another certification to our brand and product कि ये Shark Tank approved है. बिल्कुल. अगर कोई चीज़ Shark Tank पे आ रही है, so every word that we are saying is being measured, is being checked, is being verified by the Shark Tank team, by the Sony team. So that is one very big thing that we get into. And of course, like how we have Aman Gupta as our mentor now. So the connects that he has in terms of the channel that we are trying to develop in terms of distribution, in terms of getting good connects, in terms of connecting us to people where we can expand our network of sales. वो सब भी आता है. एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ रिकग्निशन. आई डोंट थिंक अगर मैं एक रैंडम कॉल करूँ टू दी स्टोर्स वेयर आई वांट टू हैव माय प्रोडक्ट ऑन बोर्ड इन देयर स्टोर, एनीबडी वुड एग्री टू इवन बी विलिंग और ओपन टू टॉक अबाउट इट कि मेरा प्रोडक्ट उनके स्टोर में आना चाहिए. बट वहीं पे जब व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्ट कि ओके हाई आई एम अ ब्रांड हु हैज बीन फीचर्ड ऑन शार्क टैंक सीजन 5 एंड यस वी हैव बीन फंडेड बाय अमन गुप्ता एंड ही इज the one who's mentoring us. So definitely वो sudden वो जो response रहता है, वो जो positive response रहता है बाकी लोग के end से, वो Shark Tank से पहले नहीं था. And of course not to forget जो family, friends,
peers में जो sudden because Shark Tank till the date you are at it has to be extremely confidential. मतलब हमारे जो immediate family members थे जो हमारे साथ रहते थे उनके अलावा किसी को मतलब relatives को भी नहीं पता था. So वो जो instant recognition मिलता है, that outburst of wishes and feelings and all that all comes in with the episode. So yeah. Beautiful. So post Shark Tank, I think काफी ज़्यादा help होती है in terms of as you said connects and immediately कहीं पे भी जाना है, बातचीत करनी है. You have one more thing to add on to talk about, let's say, and a credibility. जाके check कर सकता है कोई भी बंदा if they type Swapnil, Babyworks, Shrey. Before Shark Tank, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी इन योर बिजनेस इफ यू कैन रिकॉल जिसको सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा और जो सॉल्व होने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई? हमने शार्क टैंक जब हमारा एपिसोड एयर होने वाला था तो बेसिकली इन आवर बिजनेस वी वर प्री शार्क टैंक वी वर डूइंग 100% prepaid orders. Okay. We were not offering COD because all of our products are customized and made to order, be it a generic design or be it a name customized design. Because हम लोग सारा जो भी products होता है बेबी की एज के अकॉर्डिंग जो भी साइजेस हमारे को मिलता है उसके अकॉर्डिंग वी मेक इट एज पर ऑर्डर. तो एवरीथिंग वॉज प्रीपेड. सो पोस्ट शार्क टैंक बेसिकली हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा जब एपिसोड एयर होने वाला था तो स्वप्निल ने मुझे बोला कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो अपने एपिसोड देखेगी और लेना चाहेगी. एंड इवन आफ्टर them getting to see us on TV and trusting us through that medium, हो सकता है कि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं हो कि वो अमाउंट को ऑनलाइन प्रीपे करके अपने से परचेज कर सके. सो वी went to our checkout partner and to our logistics partner and हमने रिक्वेस्ट करा कि we want to start a partial cash on delivery system on our website. So basically हमने प्री शार्क टैंक इसलिए रिक्वेस्ट करा था हमारे जो लॉजिस्टिक्स एजेंसी होती है बट एट दैट टाइम उन्होंने हमें रिफ्यूज़ कर दिया था उस चीज़ के लिए. बट व्हेन दे गॉट टू नो कि हम शार्क टैंक पे आने वाले हैं सो दे ऑल्सो अग्री टू दैट बिट कि आप लोग को वील प्रोवाइड द स्प्लिट COD वाला पार्ट. एंड बिफोर शार्क टैंक ओनली वी इम्प्लीमेंटेड द पार्शियल COD ऑन आवर वेबसाइट कि आप 50% प्रीपे कर दीजिए, 50% यू पे ऑन डिलीवरी एट योर डोर स्टेप. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो प्री शार्क टैंक था. बट हमने जस्ट बिफोर एयरिंग हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया था वेबसाइट पे बिकॉज वी न्यू कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के लोग होंगे जिनके पास दे वांट टू पे फॉर द प्रोडक्ट बट प्रॉब्ली उनको कैश पे करना है कुछ अमाउंट. तो हमने इम्प्लीमेंट करा ताकि हमारे जो कन्वर्जन्स हैं जो हमारी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन है वो बेटर हो. वी कैन fulfill more orders, we can improve our OS and probably reach to more customers. So this was something that cool. Yep. So in business let's say ये तो एक हो गई हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बिजनेस में. पर्सनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स व्हेन वी आर बिल्डिंग बिजनेस, ऑफ कोर्स बिजनेस भी है एंड साथ में वी हैव अ लाइफ वेयर पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चलता रहता है. एंड हम लोग बिजनेस को एक स्टार्टअप को अपना बेबी ही बोलते हैं. एंड यू बीइंग अ मदर you were raising your kids and you were starting this out. What were some of the trade-offs and जो भी मदर हैं जो ये एपिसोड देख रहे हैं, how should they work around, how should they manage things, what are your learnings if you can encapsulate them? So I think the hardest trade-off has been the time and presence. I mean, there are days when as a mother I have to, really struggle. I need to make a conscious choice ki whether I should be at work at this particular point of time, I should be home. But as I always say, I'm trying to create an environment. I'm trying to create an example for my kids where they see the determination, the hard work of their mother, the resilience. They do not see it as the only thing that that the mother is compromising with the kids, but they genuinely see and look up to their mother that she's been a hustler and how she's struggling and making sure both the things are working well. So I think time and presence, yes, is the hardest part of journey as a mother and an entrepreneur, I feel. Swapnil, I think for your kids watching you hustling, doing things and managing things here and there, I think this is one of the best thing they must be watching even today as well. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि
बच्चे उसी से शेप अप हो रहे हैं जो वो घर में देख रहे हैं. Right. ऐसा लगता है कि ऐसा ही है. मेरे घर में कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था, तो माई रिलेशनशिप विद मनी, माई रिलेशनशिप विद वर्क वॉज वेरी डिफरेंट. एंड व्हेन आई एंटर्ड इनटू अ बिजनेस आई वाज सुपर स्कैर्ड, बिकॉज मैंने किसी को देखा ही नहीं है बिजनेस बनाते हुए, और मैं इसे ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे लेट्स से मेरे पापा ने जॉब की है, मेरी मदर ने जॉब की है, राइट. बट आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ बेट्स जो शायद उन्होंने कभी लाइफ में लिए ही नहीं थे. So if they are watching you, they must be learning a lot of things which otherwise would not have been possible if you have been doing some other thing. So I think it's a blessing in disguise. I would say कि हाँ trade-offs तो हैं, but बहुत सारे positive benefits भी हैं. मतलब आज तो my niece, we have a plan, अभी तो वो 2 साल की है, but we have a plan to bring her in our office as well and see how we are doing things. क्योंकि mostly हमारे साथ रहती है, घर पे खेलती रहती है, but I want her to see things. I am not asking her to become a founder, do a business. पर यहाँ पे ना 10 चीज़ें पता लगेंगी. So it's something which is beautiful. So today, what direction are you going in as a brand? How are you visualizing your brand for, let's say, next 3 years, 5 years or so? So we plan to grow BabyWorks in a very structured manner. हम लोगों ने phase wise growth map out करी हमारी. The first stage being reaching out to a wider audience that is there in India firstly. तो इंडिया में tier 1 से लेके tier 2, tier 3, even tier 4 cities भी हैं जहाँ पे बेबी ज्वेलरी प्रोडक्ट्स की डिमांड है. And this we plan to do with the help of micro influencer targeting. So basically आजकल regional content भी बहुत चल रहा है. So how brands are doing is कि वो for example केरला के कोई influencer को पकड़ लेंगे जिसका वहाँ पे अच्छा रीच है. Although it might not resonate, the influencer's aura and you know the aesthetics might not match with the brand's aesthetics, but the core part being कि उस influencer के पास उस region का बहुत अच्छा hold है. बिल्कुल. And as a brand, you want more and more customers to be aware about your brand and the products that you sell and your brand story also. तो micro influencer targeting से ये होगा कि हम लोग जहाँ पे through performance marketing शायद आज से 10 या 20 दिन बाद पहुँचेंगे, with the influencers we can reach them in a shorter span of time. तो through that manner we are trying to reach to a wider TAM ताकि हमारा जो top of the funnel है वो भी थोड़ा सा बड़ा रहे, बिकॉज जितना ज़्यादा हमारा टॉप ऑफ द फनल रहेगा उतना ही बेटर हमारे कन्वर्जन्स होंगे एज वी मूव डाउन द फनल. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स. एंड ऑल्सो हमारे को पोस्ट शार्क टैंक एंड प्री शार्क टैंक ऑल्सो वी यूज टू गेट क्वेरीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. सो बेसिकली जो NRIs हैं जो बाहर रिसाइड करते हैं उनकी क्वेरीज आती है दैट डू शिप टू US, UK, कनाडा, जर्मनी, दुबई से भी आती है, UAE से आती है. सो हम लोग अभी तक इंडिया में शिप कर रहे थे, अभी भी इंडिया में ही शिप कर रहे हैं, बट पोस्ट शार्क टैंक हमारी almost 35 to 40% queries इंडिया के बाहर से आई थी. So we tried to convert as much as we could do जिनको हम इंडिया में शिप कर पाए. बिल्कुल. बट जो नहीं कर पाए उनके लिए we also have this thing in mind कि बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रोडक्ट क्या एक्साइटमेंट है, नीड है, दे वैल्यू द प्रोडक्ट. तो हम लोग एक इंटरनेशनल वेबसाइट भी बिल्ड कर रहे हैं एज वी स्पीक, एंड वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट विद इंटरनेशनल website also for BabyWorks where we'll be catering to the customers in US, UK, Canada, so that we can ship outside India. तो हम वो channel develop कर रहे हैं because shipping silver and gold jewelry outside India requires like a lot of permissions and licenses. So हम लोग उस phase में हैं अभी. बिल्कुल. This is second of that. Beautiful. Yeah. I think ये जो India to world वाला angle है, it will be super good. Petal is one of the brands जिसने US में scale किया and then crazy things, and all is happening through content, reach, etc. What are you most excited about, Swapnil? I think I'm more into the fame and the glamour that we've been getting, and Sky's happy with the orders that we've been getting. So that's what I tell him, that मैं खुश हूँ, to my heart's content, I'm everywhere, we are everywhere. I'm liking the fame, I'm liking the recognition. Of course, on the face of it, I would just try be humble and modest to people that no. नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं थी. ऐसी कोई बात नहीं है. But yes, I'm enjoying this phase. You have earned it. You should. Yes, so I tell him this, we
we've got what we wanted. I wanted the fame and you wanted the orders. So I think we are at the right place now. yeah. बिल्कुल सही है. Yes. So my set of questions are done, but they are not done. But for the podcast, they are done. We have a segment where one of our team member who is a Gen Z, she comes and she asks some questions related to their generations, because Gen Z के बारे में ना ऐसे बहुत या तो अच्छा बोला जा रहा है या बुरा बोला जा रहा है, but we created a segment so that Gen Z can ask their question. So a representative of Gen Z in our podcast. So she's coming and she'll be taking quick 15-20 minutes of yours. Thank you. Thank Thank you. Hi, ma'am. Hi, sir. Hi. Hi. Welcome to the pod. Thank you. Thank So you. I am a curious Gen Z. I'll ask some questions related to my क्या बोलते हैं com Gen Z com. Okay, first question would be we as a generation, we are very difficult in terms of buying things, especially gold. कोई ऐसी चीज़ है, me personally would not invest on it because that is a old thing कि gold में invest करो. But we are of new mind, new generation. So what your brand is doing to integrate that thought process in upcoming or new moms, new parenting? I think I definitely agree to what you're saying कि Gen Zs को convince करना कि आप मुझसे gold लो is difficult. But वही Gen Z जब आज से 5 या 6 साल में जब एक mother बन जाता है, तब वो इतना specific हो जाता है अपने बच्चे को लेके that they want to give their child the best. So I would say you would not be okay buying something for yourself in gold or silver. But when you are becoming a mother, or Gen Z is becoming a mother after 5 or 6 years, she's very open to buying what is best for their child. And that is what we give to your child. Something which is baby safe, which is hypoallergenic, which is safe for your child in all aspects. So that is when the buying comes in process, I would say. And also, Gen Zs these days are very, excited and curious to explore new products or whatever trending is going in the, market. So a lot of times, Gen Zs do come to us also to buy products for their niece, nephews. Like our audience is just not mothers and fathers, but also Gen Zs who want to gift younger ones Right. with something, differentiated. So like Gen Zs are also a very small part of our customers right now. That makes me very curious. What if your main audience is parents, of course, but what if it would be a Gen Z like me? What would you like? How would you project your product firstly, and what you will make the changes in your product to that we come to you to buy that particular product? So I think we'll try catching the vibe that you say of the Gen Zs. The vibe is what they like, and trying to catch the latest trend or what would be their like or dislikes. Trying to understand, as we say, that our product reflects the emotion of the buyer. So we try to tap on the emotion bit of it. Whatever vibe you like, if we feel you're a soft person, you're a calm person, you're a music lover. So accordingly, we would suggest or make something for you. Right. One thing I loved about your product is that it is very personalized. Yes. What Gen Z, of course, love that personalized thing, which we are like into it. Ki bhai, anything that makes us feel connected to ourselves, kind of self-love. So you can say that also make us more curious. Now my next question to you is like, you being a woman, and women are rocking there. Women are there out building brands and they're owning it. Being a woman, had you had some challenges all through this whole journey? Challenges, yes. I mean, in terms of balancing life, in terms of managing both the worlds, wherein I'm trying to manage my family and business, it does get challenging. But I would say if you have a very supportive ecosystem around you, if you have a supportive family, a supportive husband, understanding kids, it all goes well. So yeah. That is okay. Being a woman, you being struggling, and you have built such a good brand. So this question is to you. We have noticed people now are not only involved in product, but they are also involved what is behind the product. Means how the sustainability is, how the whole process is, what are the sources, what are the safety. So how is your brand bringing that to the particular audience out there? So the safety bit is something what Swapnil talks about really well, and I think she's the best person to answer that. But to address the sustainability part, or to address the other aspect of your question, all of our products are, everything is handcrafted.
So we are empowering artisans also. It is not just there's not just the business side to it, but also like a humanitarian aspect to it, because we are also trying to increase our capacity as we speak. And after Shark Tank, the business has also increased multifold. So we are empowering more artisans on a monthly basis. We're trying to expand our team, and yeah, that's about it. The main section is Gen Zs, and Gen Zs are working. We have seen that Gen Z is bringing a good energy to the workplace as well. And maybe you have been working with Gen Zs. So what energy do Gen Z bring to your particular workspace? I would like to know what do you have that do you have a positive thought process or a negative thought process about particular generation right now? So, of course, we are working with a few Gen Zs, and they're very passionate about their work. I feel they're not coming just to make sure that like from 10 o'clock to 6 o'clock or 8 o'clock they're trying to spend their day. They're trying to just create something meaningful. They're trying to come to a place where they look forward to the day, look forward to making some doing something productive through the day. They want to have fun as well as having some discipline. I mean, it's not like a clerical job that they're looking for, but they're looking for something meaningful which makes their day much brighter, I would say. Looking forward and meeting a team where they feel better about what they do, how they work. That's how I feel a Gen Zs feel now. Great. Okay, that's of course I will take it as a my no for myself. But sir, I would like you to give an advice to us. We as a generation, we are confused a bit, but we are very creative with our work. And as I've listened to you, you have changed your occupation from shifting something from, it takes a lot. So would you like to give any advice to the Gen Zs out there which you keep with yourself throughout? I would just say, and of course Gen Zs do follow this already, I know, that just follow your heart and do what you like. That Don't we are doing. huh? That we do, But but still yes. yeah, and I think Gen Zs are in a very good space right now, and it's a very good like India is a very good place to be. Like the landscape of the the D2C space, and overall India is in a very it's a growth phase that India is in right now. In whichever aspect your interest lies, you can just put your heart out and you can work in that direction. And I'm sure that when you do something which you like and you love, you don't feel the need to do it, because the motivation automatically pushes you further. So just follow your heart. And Right, that is the one of the best advice, because we tend to do more when we are in a particular space where we love to do. And and this brings me one more question to the table. Okay, you have your brand that is for Baby Works, which is only baby centric. Are you planning to future to expand it to us as well, to the upcoming generation, that is Gen Zs? Do you take Gen Zs as a customer? Do you're planning to expand? We are already catering to the kids right now, but now we are targeting the teens as well. As in right now, the range of products that we offer does have teen jewelry, but we want to maximize our range now for them. Gen Z is not at this point of time, because as we mentioned that we feel that our forte or our moat has always been the focus that we have, that the deep connection and the thought that we put in when we are trying to create something for kids. So extending it to Gen Zs at this point of time is not something we have in our mind. But yes, as a brand, we are always open to it. Great. So yes, that was a great. We do want that your brand should expand and we get the products. So there's a small round where I just want to ask you some words, and I'll just say words. You just have to tell me the meanings. I'll just rate you that how Gen Z you both are. I'll start with first word. I guess you can Riz. Can you tell me the meaning of the Riz? What? This is the session. Riz. Riz. Is इसको कुछ नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता इसका मतलब तो. No, you just have to tell. I thought the word will come now. Riz. Okay, the word is Riz. Yes, now you just tell me the meaning. You have. Then I will rate you like 1 to 10. I just know Riz. I don't know Riz. Sorry. Rate her 0 already. I'll just tell you one sentence. You look Riz today. I mean, I'm sure I'm looking great today. So Yes, charming. Slay. This is very easy. Slay means you are killing it. Oh, yes. I also knew what slay, by the way. Mid. Huh? Mid. This is not fair. You're giving him the easy one. What? no, क्या it's क्या? Mid. Mid. Yes, mid. MID mid. Yes.
Mid. It's You're a very mid- average. Yes. Oh my God. He's right. Next, no cap. No boundaries. No cap. Kind of. What we said, topi mat penao. No cap. मतलब No no lies. Ah. Hey, Right. And this is very easy vibe. vibe, the feel of it, the vibe of it, Yes. like And this is more easy. Red flags and green flag. oh, Red flag, green flag. no, red flag, and always green flag. That's the end to the session. And of course, I have to give you like 10 out of 10 because you knew maximum words. And ma'am, I'm really sorry. I was giving you 3 because there was like, so you both have a Gen Z soul. It's amazing. And we'll surely we would love that your brand should expand to Gen Zs as well. You cater us as a customer. And this session was amazing, and I have learned a lot. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you.